S. Chand presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Do you know crystal field theory, which is a very important theory for explaining the coordination chemistry? It says that the bonding between metal and ligand is purely electrostatic in nature. That means we are considering metal as positive charge and ligands as negative charge, and there is electrostatic attraction between them. Hi, this is Dr. Garima Gaba. Welcome to S. Chand Academy. And in today's video, we will discuss about CFT, that is crystal field theory. If you want to read more about this topic, then you can refer to the book by S. Chand Publishing, whose link of the ebook is given in the description box below. So you can download that book and you can read as much as you want. So let's start with today's video. Today's topic is about crystal field theory. We'll discuss crystal field theory in two parts. So this is video 1 and then we'll go to the video 2. So we'll start with crystal field theory part 1. In this video we will be discussing about crystal field effect, then octahedral symmetry, crystal field stabilization energy, crystal field effects for weak and strong field both. So let's start with crystal field effects. So as I have told you, CFT is a theory for explaining the bonding between coordination compounds, and it says that attraction between the central metal and the ligand in the complex is purely electrostatic in nature, right. So some of the assumptions of CFT are: first one, ligands are considered as point charges. So there is no interaction between the ligand orbital and metal orbital. Ligands are considered as point charges and they are negatively charged species. No interaction between metal orbital and ligand orbitals. That means they are only attracting as positive species and the negative species. Metal which is forming complex is positive, ligand which is coming is negative in the charge, or either it is as in the form of anion or it is having lone pair of electron. And the third assumption of CFT says, in the free atom all the d orbitals are having the same energy. That means they are degenerate energy. This is known as degeneracy. That means they are degenerate in level if they are having the same energy. So if you plot anything regarding to in the y axis, if you plot with energy parameter, if they are the same level, we will represent it like this. So let's move ahead. Before going to the actual theory and before understanding what are the bonding between metal orbital and ligand orbital, first we should be knowing about the shape of d orbitals. So d orbitals are 5 as you know, but the shape is different for all these 5. Till now we have discussed s orbital, which is spherical in shape, p orbital is dumbbell in shape, and all the shape of all the p orbital, that is px, py and pz are same. But in d orbital it is not the case. D orbitals are 5 orbitals and they are different in shapes, and we have divided them into two sets. The first set is says as T2G, the second set is EG. So T2G is dxy, dxz, dyz. All these 3 orbitals are coming into the category of T2G orbital, and then the next two, dx square minus y square and dz square, comes into the category of EG orbital, right. So T2G orbital, the shape is like double dumbbell, it is a dumbbell shaped orbital, d orbital is double dumbbell shaped, right. So how the shape differs, that T2G orbital, these 3 orbitals, they point between the axis xyz, and EG orbital they point along the axis xyz. So we can look at the shapes of these. So T2G, as I have told you, these are pointing between the axis, so this is double dumbbell shaped orbital. So like for example, this is dxy orbital. So if we plot x axis and y axis like this, so the density, electron density would be maximum around these lobes. So this is double dumbbell shape. Again dxz, so we consider z axis, z axis, dyz, y axis, z axis, and all the orbitals, all the lobes which are having maximum electron density. So their electron density would be maximum between the axis, right. And the next set of energy levels is of EG, dx square minus y square and dz square. So in this case the lobes are at the axis, right. So dx square minus y square, when we are considering xy, so its shape would be like this, and dz square, because it involves only z orbital, so it is when we plot around the z axis, its shape would be like this,
right? So there is a difference in shape, but their energies are same. If we are considering the free metal ion, in that case energy of all the 5 orbitals would be same, right? That's why electron will come into any of the orbitals, that will not make any difference in the energy level of the free metal ion. So when we are considering in the case of complex, in the complex state, when an octahedral complex is being formed, you know the coordination number is 6. That means 6 ligands are coming from different direction and they form bonds with one particular metal ion. So we see coordination number 6 as I have told you, this is the central metal. There are 4 ligands in the square shape and one is at above and one is below. So if we consider in the form of cube, so this is our metal ion and ligand is coming from all the direction, right? So it is coming from plus x, minus x, plus y, minus y, plus z, minus z, right? So it is coming from all the 6 direction and it is forming an octahedral complex which can be represented in the form of proper cube. Now how this 6 ligand will affect the energy of these d orbitals? So we can see 6 ligands are approaching along x, y, z, minus x, minus y, minus z. Now lobes of Eg orbital, Eg कौन से orbitals थे if you remember, dx square minus y square and dz square. उनके जो lobes थे कहाँ थे, right, point along the axis. और T2G orbitals के lobes कहाँ थे, between the axis. अब देखिए ये है along the axis, मतलब axis के ऊपर ही इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, एक्सिस के बीच में. अब लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस पे. तो लिगेंड्स क्योंकि इन डायरेक्शन से आ रहे हैं और उनकी डेंसिटी किनकी वहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की और डी जेड की. तो दैट मीन्स इनकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस. दैट मीन्स Eg को ज़्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी देन T2G, right? So thus 6 ligand will increase the energy of Eg orbital much more than they will increase the energy of T2G orbital. तो अभी तक क्या था आपका फ्री मेटल के केस में मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स थे, सबकी सेम थी, लेकिन वैसे इनकी एनर्जी सेम थी, शेप वॉज डिफरेंट. शेप T2G की अलग थी, Eg की अलग थी, राइट? 3 मेरे T2G ऑर्बिटल हैं लाइक दिस और 2 मेरे Eg ऑर्बिटल हैं. अब ये है बिटवीन एक्स वाई जेड, जैसे मैंने एक्सिस बनाया तो उनके बिटवीन इनके लोब्स हैं और Eg ऑर्बिटल जैसे मैंने एक्सिस बनाया तो उनके ऊपर ही इनके लोब्स हैं. अब लिगेंड तो इन प्रॉपर एक्सिस पे आ रहे हैं, तो क्योंकि लिगेंड एक्सिस पे आ रहे हैं तो इनको रिपल्शन ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, इनकी एनर्जी पे ज़्यादा इफेक्ट होगा. दैट मीन्स अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद 2 लेवल हो जाएंगे एनर्जी के. नीचे वाले लेवल पे T2G इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ऊपर वाले लेवल्स पे Eg इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. You can understand this in a better way from this slide. So this is when energy is like this. So this is at the same level. मेरे पांचों ऑर्बिटल सेम है. कब? जब मेरा मेटल फ्री स्टेट में है. कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, फ्री में है. लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है तो उस केस में क्योंकि 6 साइड से लिगेंड आ रहे हैं तो Eg जो है वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा देन T2G, राइट? तो Eg कौन से थे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. और T2G कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड. तो ये मेरे 3 थे T2G और ये मेरे थे Eg. यहाँ पे T2G और Eg जो है वो ग्रुप थ्योरी से लिए गए हैं. सो अगर आप इसको भी ज़्यादा पढ़ना चाहें यू कैन रेफर टू दी एस चैन पब्लिशिंग हाउस बुक. अदरवाइज टिल नाउ यू शुड बी नोइंग दिस फैक्ट दैट डी ऑर्बिटल्स की शेप्स के ऊपर इनको ये टर्मिनोलॉजी दी गई है T2G एंड Eg. तो T2G होते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड. Eg होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. Eg जो है उनमें वो ज़्यादा रिपल्शन या वो ज़्यादा एनर्जी फेस करते हैं क्योंकि लिगेंड उनकी डायरेक्शन में डायरेक्टली आ रहे हैं, मतलब वो डायरेक्टली लिगेंड्स को फेस कर रहे हैं. और इनके बीच में और लिगेंड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए वो इतनी रिपल्शन फेस नहीं करते. इसलिए T2 की एनर्जी भी बढ़ेगी लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी Eg की बढ़ेगी. अब ये एनर्जी है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दोनों बढ़ रही हैं. दैट मीन्स एनर्जी तो T2G की भी बढ़ रही है, Eg की भी बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि Eg जो है वो डायरेक्टली लिगेंड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है सो द एनर्जी ऑफ Eg वुड बी एट द हायर साइड देन T2G. दिस इज द केस फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट? तो हम इस फैक्टर को कंसीडर करने से बेटर हम क्या करते हैं, एक परटर्ब्ड एनर्जी लेवल ले लेते हैं और उसको हम यहाँ पे ऐसे बैरी सेंटर बना देते हैं. दैट मीन्स हमने इसको 0 ले लिया.
अब हमने मान लिया कि T2G जो है वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है और EG जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। कितने पैरामीटर से बढ़ रही है? इन दोनों के बीच का जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा O, राइट। सो इसी हम एनर्जी पैरामीटर को बताते हैं कि उन दोनों के बीच में अब डिफरेंस कितना हो गया एनर्जी का, डेल्टा O। तो अब कितना डिक्रीज हुआ है, -4 डेल्टा O नॉट और +6 डेल्टा O नॉट। सो दैट मीन्स अब मेरी जो एनर्जी है, अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा तो वो इतना उसको स्टेबलाइज कर देगा, और अगर वो EG में आएगा तो वो उतना डिस्टेबलाइज कर देगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों है कि हमने बोला कि ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जब मेटल फ्री ऑर्बिटल से लिगेंड पे गया, कॉम्प्लेक्स स्टेट में गया, इन दैट केस हमारे दोनों की एनर्जी बढ़ी है। लेकिन टू वी टेक इट एज अ बेरी सेंटर में हमने मान लिया कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 0। उस केस में आपका जो T2G लेवल है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, EG लेवल विल गेट डिस्टेबलाइज। और ये जो 0.4 डेल्टा नॉट और 0.6 डेल्टा नॉट आए हैं, ये हमारे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ये आए कहाँ से हैं? फॉर एग्जांपल हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे? हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स होते थे, राइट। सो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, हर उसमें 2-2 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। अब T2G में कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? dxz, dyz, dxy। और EG में कौन है? 2 हैं, dx² - y² एंड dz²। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4। तो इनको नॉर्मलाइज करने के लिए अगर मैं 0.4 ले लूँ, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन 0.4 डेल्टा नॉट स्टेबलाइज्ड हो रहा है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? +6। सिमिलरली अगर मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन डेल्टा नॉट में EG में जा रहा है तो वो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है बाय दिस पैरामीटर। सो नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन दिस केस, सो माई टोटल वुड बी 0, राइट। तो जब मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो मेरा जो एनर्जी सिस्टम है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। दैट्स वाई दिस 0.4 डेल्टा 4 नॉट और डेल्टा 6 डेल्टा नॉट जो है वो यहाँ से आया है, हाउ दीज एनर्जी सिस्टम वुड बी स्टेबलाइज्ड। मूविंग अहेड, ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। जो लिगेंड्स विच रिजल्ट्स इन स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा नॉट की वैल्यू जिसमें कम होती है, दे आर नोन एज वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड विच रिजल्ट्स इन लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उनमें डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है, राइट। सो दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो CFAC क्या होता है? ये हमने ट्रांजिशन मेटल्स में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जितनी ज़्यादा CFAC होगी कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो CFAC क्या होता है? 0.4 डेल्टा नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग इनटू T2G, 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग इनटू EG। CFAC होता क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, राइट। सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज 0.4 N T2G, 0.6 N EG। कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे? ओके, नाउ ओवर हियर वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट बिफोर गोइंग टू द ब्रेक आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। इन द केस ऑफ वीक फील्ड लीगल एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगल, हम किस केस में प्रेफर करेंगे कि हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा, राइट। तो पेयरिंग किस तरीके से होगी और किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिचुएट होंगे। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ब्रेक वी विल कंटिन्यू हियर, एंड सो प्लीज़ कम बैक सून एंड विल डिस्कस दिस लेटर। Hello, welcome to the S. Chand Academy. I'm Dr. Sujata Sengupta, and I'm coming back to you with some more videos to cover various topics in organic chemistry. This time we will be covering carboxylic acids, the chemistry of carboxylic acid derivatives, and that of the amines. So if you enjoyed our previous videos, do stay tuned, keep subscribing to our channels, and watch out for these important topics. Welcome back to S. Chand Academy. In today's video we are discussing about CFT, that is crystal field theory. So CFT says that there should be attraction between metal and ligands which is purely electrostatic in nature. So we were discussing how d orbitals are degenerate in nature when it is in the free form, and when a complex is formed how that degeneracy is removed, right. So before going to the break I ask you a question, that in which case it is possible for us to having a strong complex formation, weak field ligand or the strong field ligand.
Now let's discuss this. So we discussed that the ligands which result in small crystal field splitting, that will form weak field ligand, and the ligands which result in large crystal field splitting, that are strong field ligands. So CFSE would be 0.4 into number of electrons which are coming into T2G, 0.6 number of electrons which are coming into EG orbital, right. So let's look at this table which is plot from D1 to D10, that is for the transition elements. So as you know, when transition elements are getting filled, the electrons are situated like this. Now for example in octahedral complexes, over here we will discuss the case of octahedral geometry. Now when the electron is coming into T2G orbital, we says that the CFSE would be 0.04, right. When 2 electrons are coming, so twice into 0.04 minus, right. When 3 electrons are coming for D3, thrice into 0.04. When 4 electrons are coming, now 3 electrons are coming into T2G, 1 is coming into the EG orbital. EG orbital means this is 0.12 which was there over here, plus 0.6, right, because 3 electrons are coming into T2G, 1 is going into the EG, so it is getting destabilized and this ये जो CFSE होगी वो आपकी कम हो जाएगी. Again for D5 case all electrons are singly filled, so that means जितना T2G ने stabilize किया उतना EG ने destabilize कर दिया और वो आप फिर से बेरी सेंटर पे आ गए. हुआ क्या इस केस में, आपने 3 इलेक्ट्रॉन गए 0.4 T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन गए EG में, that means 0.6. So this is 1.2 and plus 1.2, so that is 0, right. Similarly when all the electrons are after D5, when it starts pairing, again the energy would be like this, 0.4, 0.8, 1.2, 0.6 and 0. So this is the case when they are weak field ligand, right. In the strong field ligand, what happens is, in the weak field ligand the energy difference is not that much high, delta naught is very less in the case of weak field ligand. If we are considering the case of strong field ligand, then delta naught is very high. If this is the low energy level, this is the high energy level, that is T2G and EG, delta naught is very high. This is your delta naught, right, for octahedral complexes. So in this case, instead of electron will go into the different level like 1, 2, 3 and then 4, it will prefer to get paired up. We will see in the next slide. So that was CFSE in the weak field ligand, this is the CFSE in the strong field ligand. So in the case of strong field ligand, as I have told you, delta naught is very high. So when delta naught is very high, that means there is a huge difference between T2G and EG. So instead of electron to go into the higher level, it will prefer for it to get paired up. तो वो वहीं पे नीचे पेयर होना प्रेफर करते हैं. लाइक अब इसके केस में भी देखो D3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, D3 तक T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आपकी जो एनर्जी है वो सेम होगी, चाहे वो वीक फील्ड में आप देखो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखो. बट व्हेन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इनटू दिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द EG लेवल, व्हाट इट हैज़ प्रेफर्ड टू डू, इट हैज़ प्रेफर्ड टू गो गेट इट्स पेयर्ड अप इन T2G. तो उसने EG पे जाना प्रेफर नहीं किया, उसने T2G में पेयर होना प्रेफर किया है. इससे क्या हुआ, क्योंकि अब जो जहाँ पे अगर ये पेयर होता तो 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता EG लेवल पे वो उस सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देता. लेकिन इस केस में क्या हुआ है, इस केस में चारों इलेक्ट्रॉन्स नीचे आए और जो नीचे आ रहा है उसकी एनर्जी कैसे हो रही है 0.4 और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4. सो दैट वुड बी -1.6, right. So energy of D4 in the case of strong ligand field is 1.6. अगर मैं आपको पहले वाला दिखाऊं तो एनर्जी इन दिस केस वॉज 0.6, राइट, क्योंकि जब वो EG में इलेक्ट्रॉन गया तो वो डिस्टेबलाइज्ड हो गया. सिमिलरली इन द केस ऑफ D5, अब जब तक D6 पे जाएगा तब तक सारे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे. तो अब D7 कहाँ पे जाएगा, ऊपर EG पे, क्योंकि अब तो नीचे और कोई जगह ही नहीं है उसको इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने की. तो अब D7 वाला ऊपर जाएगा, फिर D8 वाला एक दूसरे EG लेवल पे आएगा, फिर D9 पे आपके EG जो है वो आपके पेयर अप होने स्टार्ट होंगे. तो अगर आप इन एनर्जीज पैरामीटर्स को एक बार दोबारा देखें, सो इट वुड बी मोर क्लियर टू यू
क्योंकि आपके ये हमने एग्जांपल किया वीक फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, आपके पहले सारे एक एक लेवल फिल्ड हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम T2G एंड देन EG। तो D4 के केस में आपके सारे यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन T2G में जाने के बाद वो कहाँ जाना प्रेफर करेगा, EG में। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऐसा नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, T2G जब D4 पे आएगा तो वो EG में जाना प्रेफर नहीं करेगा, वो वहीं पे कपल होना पेयर होना प्रेफर करेगा और वो उसकी जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, राइट। तो वीक फील्ड के लिए इसकी एनर्जी थी 0.06, लेकिन इसके लिए -0.6। नेगेटिव जितना ज़्यादा है एनर्जी सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल है। सो दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड देन एज कम्पेयर टू वीक लिगेंड फील्ड। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर होने के लिए हुंस रूल कहता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक करके फिल होंगे ऑर्बिटल में और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ती है पेयरिंग के लिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फेस करेगा, राइट। इट विल नॉट वेलकम इट्स द अदर इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन होम, तो वो उसको अपने ऑर्बिटल में नहीं आने देगा, वो उसको रिपेल करेगा। उसके लिए वी नीड टू अप्लाई सम ऑफ द एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। तो ये जो पॉइंट Δ6 है इसके साथ हमें थोड़ी सी पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ती है, तो जाके ये जो ऑर्बिटल है इस तरह से कॉन्फ़िगर हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी एंड विल कंपेयर बिटवीन दी वीक एंड द स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब आपको पता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम हाई स्पिन या स्पिन फ्री बोलेंगे। दिस वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो फॉर व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट VBT। सिमिलरली जितने लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड होगा, राइट। तो अगर मेरे पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो उतने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन, या हम बोलते हैं स्पिन फ्री, कि स्पिन फ्री है अपना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर लो स्पिन है, जितने लेस है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको बोलते हैं लो स्पिन ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, और जो स्पिन है वो पेयर्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड अप हो चुके हैं। सो अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन वेदर एनर्जी टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन टू द EG ऑर्बिटल। अब एनर्जी हमें जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, Δ0 पे, इज ग्रेटर देन द एनर्जी टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो ये P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, राइट। सो मैंने आपको D4 का एग्जांपल बताया कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि Δ0 कितना है। अब Δ0 अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या प्रेफर करेगा कि मैं T2G में ही रह जाता हूँ, EG में नहीं जाता, तो लेकिन T2G में रहने के लिए उसको पेयर अप होना पड़ेगा, तो हमें कुछ पेयरिंग एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो कौन सा अरेंजमेंट होगा, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रिजल्ट होगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रिजल्ट होगा, दैट डिपेंड्स वेदर आर Δ0 इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी और नॉट। तो वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे Δ0 जो है वो कम होता है उनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं, मतलब उन लिगेंड्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डीजेनरेसी को बहुत ज़्यादा रिमूव कर सके। सो इस केस में जब Δ0 बहुत ज़्यादा है, Δ0 इज T2G लेवल और EG लेवल का एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों के केस का जो डिफरेंस होता है एनर्जी डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं Δ0, राइट। तो Δ0 अगर बहुत कम है तो उसको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। इस केस में इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई EG ऑर्बिटल। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन नीचे, ये क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है, तो T2G के साथ EG में जाना प्रेफर करेंगे। तो वो कौन से ऑर्बिटल होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब पेयरिंग नहीं हो रही। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, जहाँ पे Δ0 मोर होता है, इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू पेयर, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होना स्टार्ट होते हैं तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। हमारे पास दो एनर्जी हैं, एक है Δ0 और एक है P। जब हमारा Δ0 कम है, राइट, Δ0 कम है मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, नाउ इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर कि मैं पेयर ना करूं और मैं T2G में 3 जाने के बाद आई विल गो इनटू दी EG ऑर्बिटल, राइट। लेकिन जब मेरा Δ0 बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जब मेरे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब चौथे इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो वो इस एनर्जी को यूज़ ना करके इट विल प्रेफर टू पेयर इन दिस अप, ऑब्वियसली विद द अपोजिट स्पिन। तो हमें थोड़ी सी पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, बट स्टिल द सिस्टम वुड बी स्टेबलाइज। तो ये कम एनर्जी कब होती है, जब हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। हम बोलते हैं लिगेंड जो है वो बहुत वीक है और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है दैट इट कैन गिव मोर Δ0, और ये कब होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के केस में।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड मीन्स आपका डेल्टा नॉट जो है वो बहुत ज़्यादा है, राइट. सो इन दैट केस पेयरिंग एनर्जी हम देंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप होना प्रेफर करेंगे. सो हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम व्हेन वी कंपेयर द एनर्जी ऑफ बिटवीन द डेल्टा नॉट एंड pairing energy, then it would be easy for us to know whether the complex would be high spin or low spin. So we have discussed two example over here. पहले जो दो cases हैं that is for iron complexes. In both the complexes the oxidation state of iron is +2 and we are taking different ligand. One is water, other is cyanide complex, cyanide ligand. So these are octahedral complexes. दोनों के केस में D6 कॉन्फ़िगरेशन है. आयरन 2+ जो हमारा आयरन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2. तो जब हम आयरन 2+ का कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6, राइट. सो 3d6 मीन्स मेरी दोनों की d6 है. नाउ इन दिस केस वाटर इज़ अ वीक फील्ड. वाटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डेल्टा नॉट बहुत ज़्यादा कर सके. सो इन दैट केस डेल्टा नॉट वुड बी अराउंड 10,000 समथिंग and for the cyanide complex delta naught is 32,000 something, right. So that means pairing energy depends upon metal. Now in both the cases metal is same, that is iron, right. So in both the cases when iron is taken as metal, so the pairing energy would be same. Now for finding out that whether the complex is high spin or low spin, we have to compare these two energy. Now in this case if you see this is around something around 10,000, this is around 17,000. So that means 17,000 is high pairing energy is there. Delta नॉट तो बहुत कम है उसके regarding. So what it would prefer कि वो prefer करेगा कि पेयर ना हो और 3 के बाद, जैसे अगर मेरा आयरन में एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रही हूँ 3d6, तो 3 के बाद आई विल प्रेफर कि मैं ऊपर ही चला जाऊँ और फिर 6 के लिए मैं नीचे आ जाऊँगा. तो ये मेरा d6 का केस हो जाएगा फॉर आयरन 2+. तो ये मेरा क्या होगा, हाई स्पिन, क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन ज़्यादा होगी. अगर मैं सेकंड केस देखूँ इन दिस टेबल, अब मेरा डेल्टा नॉट, साइनाइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड. सो इन दिस केस डेल्टा नॉट इज़ 32,000 समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है T2G और EG के बीच में, और पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है. तो अगर मेरा डेल्टा नॉट जो हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए. नाउ व्हाट इट विल प्रेफर इज, पेयरिंग एनर्जी तो उसके मुकाबले इट्स वेरी लेस. सो व्हाट इट विल प्रेफर कि मेरे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आयरन के वो हमारे पेयर अप हो जाएंगे और EG पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बिकॉज इट हैज़ टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर, right. So in that case it would be low spin complex. So over here because delta naught is less as compared to your pairing energy, so that will result into high spin complex. Over here delta naught is more as compared to a pairing energy, so in that case it would be low spin complex. इस केस में आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा. इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगी तो 0 बोर मैग्नेटॉन होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, राइट. अब हम एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं. इसी टेबल में मैंने एक और एग्जांपल दिया है विच इज़ ऑफ कोबाल्ट. सो कोबाल्ट के केस में भी अब कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7 4s2, राइट. सो लेट्स सी, ये हमारे दो केसेस हैं. कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ 3d7 4s2. तो कोबाल्ट 3+ की क्या होगी, as you can see these are +3 complexes. Oxidation state of cobalt is +3. So oxidation state of cobalt is +3, so electronic configuration would be 3d6. Again जैसे ये दोनों 6 है, ये दोनों भी 6 है, right. Again cobalt के complexes भी +3 oxidation state में, so they are having d6 configuration. So fluoride which is a halide is a very weak field ligand and ammonia is comparatively a strong field ligand. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन हेलाइड के कंपैरिजन में अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो हम अगेन इनकी पेयरिंग एनर्जी प्रेफर करेंगे, कंपेयर करेंगे. आयरन की पेयरिंग एनर्जी वो 17,600 एंड कोबाल्ट की पेयरिंग एनर्जी 21,000. So now in this case, because pairing energy for the first complex when we are taking the weak field ligand is more, so high spin complex is being formed, and in the second case we are taking the strong field ligand. We'll compare the energy between delta naught and P, and this is high, so low spin complex would be formed. तो जब आप फ्लोराइड का केस देखेंगे तो आपकी जो डेल्टा नॉट है वो बहुत कम है, राइट. पेयरिंग एनर्जी उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं तो वो कैसे आने प्रेफर करेंगे, 1 2 3,
और क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है सो दे विल प्रेफर कि पेयरिंग ना करते हुए, पेयरिंग में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, दे विल प्रेफर टू गो इनटू द हायर लेवल विच इज़ ईजी। जब आप सेकंड केस ले रहे हैं जिसमें आपका डेल्टा नॉट बहुत ज़्यादा है, तो डेल्टा नॉट अब बहुत ज़्यादा है, T2G और EG के बीच का डिफरेंस इज़ वेरी हाई और पेयरिंग एनर्जी उसके मुकाबले बहुत कम है। ऑल्दो देयर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, दिस इज़ 21,000, दिस इज़ 23,000, बट स्टिल डेल्टा नॉट इज़ हाई, सो इट विल प्रेफर टू पेयर दिस अप। तो वो ऊपर जाना प्रेफर नहीं करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर हो जाएंगे। अगेन देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल रिजल्ट इनटू द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, सो दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो आप n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 4 के थ्रू निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, सो विदाउट लुकिंग एट दिस फॉर्मूला यू डोंट हैव टू पुट एनीवेयर एल्स, यू विल से द मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी 0 and this complex would be diamagnetic. Again this would be diamagnetic क्योंकि D6 में सारे पेयर हो रहे हैं, so there is no unpaired electron, so that means there won't be any magnetic moment which is resulting because of the unpaired electron, right? So I end my video over here. I hope this topic is clear to you. So in today's video we discussed about CFT, we discussed about various complexes which are being formed by weak field ligand and by strong field ligand. We discuss how we can compare the energies of delta naught and pairing energy so that when we know whether a complex is high spin and low spin. If you want to read more about this topic, then you can refer to the book by S. Chand Publishing. Link of the ebook is given in the description box below. In the coming video, we will be discussing about CFT again. Till now we have discussed about octahedral geometry. In the coming video, next video, we will be discussing about tetrahedral geometry. Stay connected and please like, share and comment on these videos, and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notification from S. Chand Academy. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.